Honorable Speaker, Goa, Dr. Ganesh Gaukar, Honorable Speaker, Maharashtra Legislative Assembly, Honorable Ram Shinde Sir, Honorable Deputy Speaker, Neelam Tai. It's a privilege to address this August gathering on the theme prioritizes on Zone 7 in trade, tourism, urbanization, environment and coastal connectivity. Zone 7, comprising of Gujarat, Maharashtra and Goa, represents one of the India's most dynamic and strategically significant regions. United by Arabian Sea, this region is a powerhouse of economic growth, maritime strength and cultural richness, contributing significantly to India's GDP, trade and tourism potential. Honorable members, Maharashtra stands as a leading economic engine within this region. Importantly, fiscal discipline remains strong with the revenue deficit maintained below 1% of GSDP. These indicators clearly demonstrate Maharashtra's role as a global business destination and economic growth driver. Trade and coastal connectivity are central to our development vision. With a coastal line of more than 800 kilometers, Maharashtra is critical maritime hub anchored by major ports such as Jawaharlal Nehru Port and Mumbai Port. We are advancing our maritime capabilities through progressive policies and transformative infrastructure. A defining initiative is the development of Vadhavan Port, Palghar, which is going to be one of India's largest deep sea ports. The Vadhavan port is going to be one of the most game changer projects undertaken by the government of Maharashtra under the able leadership of our Chief Minister Devendra Fadnavis sir, Deputy Chief Minister Honorable Eknathji Shinde sir and Deputy Chief Minister Sunetraji Pawar. The Vadhavan Port Palghar is one of the India's largest upcoming deep sea ports, strategically designed to handle ultra large container vessels and expected to significantly enhance India's global trade competitiveness, reduce dependency on foreign transshipment hubs, generate large-scale employment and industrial growth. It will act as a catalyst for port-led development and coastal economic zones. One of the major projects undertaken by the government of Maharashtra is going to be Rewas Reddy Coastal Highway. All of us know that Maharashtra has more than 700 kilometers length of coastal line. So Rewas to Reddy is one of the most ambitious projects or coastal highway that Maharashtra government has undertaken, which will be connecting Rewas to Reddy, a 500-kilometer long corridor, which would have the connectivity between the entire coastal line from Raigad district to Sindhudurg. One of the major high points of this project or this coastal highway are going to be the 13 bridges, and each bridge would have a different kind of elevation which would make it more attractive in terms of tourism or for the coming tourist. So 13 bridges would have iconic elevations, and I am sure it will significantly reduce the travel time, at the same time boost coastal tourism, strengthen local economies and enhance last mile connectivity for coastal communities. The project is a crucial step towards advancing Maharashtra's blue economy and integrated coastal development vision. Along with this, the RoRo services have been given more importance by the Maritime Department. So we have one RoRo service which connects Mumbai gateway to Mandwa, Alibag, and recently Mumbai to Sindhudurg is another RoRo service which is providing a coastal connectivity service and has been received very well
by tourists across the state and the nation. When it comes to Goa, Gujarat and Maharashtra, I think one of the major fields or sectors where we share common interest is tourism. One major difference that I would like to point out, which is one of the most important difference between Goa and the rest of the two states, that is Gujarat and Maharashtra. Whereas our nation got independent in 1947, Goa was still under the it got its independence from the Portugal Empire in 1961. So I feel compared to the other states, Goa had to put in more efforts to match with the other states of the nation. So that is one, when it comes to the timelines or when it comes to the other development aspects, comparatively, I would like to make a special mention of the entire Goan governments till date for working comparatively more harder to match the other states while getting their independence a little later, I think by 10 or 15 years later than compared to the rest of the nation. The main common sector is tourism, of course, which other members, other dignitaries have also spoken about. I think one of the leading sectors where there is a chance of employment generation is tourism. सबसे ज़्यादा हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वो टूरिज़म सेक्टर में है, और गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये तीनों भी स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ टूरिज़म इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसका जिक्र मेरे पहले भी जो मेरे कलीग्स हैं उन्होंने किया है. सो गोवा ऑफ कोर्स द मेजर रेवेन्यू जनरेशन और इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन टूरिज़म, वेर इट कम्स टू महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पे कोस्टल ट्रेड हो, टूरिज़म हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या फिर कनेक्टिविटी ग्रोथ हो, इन सेक्टर्स पे हमारा आज तक ज़्यादा ध्यान रह चुका है. अर्बनाइजेशन भी कंपैरेटिवली मोर इन महाराष्ट्र और अभी गुजरात में भी ज़्यादा हो रहा है. तो टूरिज़म सेक्टर में जिसका जिक्र काफ़ी कलीग्स ने मेरे पहले भी किया है, जब आई रिमेंबर जब हम कोविड के दौरान 2020-21 में जब हम गुजर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर पे इम्पैक्ट हुआ था, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था, वो टूरिज़म था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लास्ट प्रायोरिटी भी लोगों की टूरिज़म थी. लॉकडाउन था, तो इसलिए जो भी राज्य टूरिज़म पे बेस्ड थे जिनकी इकोनॉमी, तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट भी उन पे हुआ. तो उस समय एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारे सेंट्रल टूरिज़म डिपार्टमेंट ने लिया था, वो था हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेजमेंट या प्रोत्साहन दे हम इंटर स्टेट टूरिज़म को, क्योंकि तब इंटरनेशनल टूरिज़म तो लॉकडाउन था इसलिए बैन था. जब हम लोग धीरे धीरे कोविड से रिकवर करने लगे, तो सबसे ज़्यादा इंटर स्टेट जो टूरिज़म है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ऐसे हमारे भारत सरकार के टूरिज़म डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया. और काफ़ी ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने अपना टूरिज़म सर्किट डेवलप किया. तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, उन्होंने जो टूरिस्ट है वो एक सर्किट डेवलप करके ज़्यादा से ज़्यादा हमने उस बात पे ध्यान दिया कि हमारा टूरिज़म कैसे हम फिर से एक बार डेवलप कर पाए. तो उस वक्त के काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस आए थे, टूरिज़म काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया था. लॉकडाउन के बाद लोग बाहर आ रहे थे, तो ऑब्वियसली वो एक बूस्टिंग भी ऑटोमेटिकली मिल गई थी. लेकिन गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र का अगर हम एक स्पेसिफिकली टूरिस्ट सर्किट आने वाले दिनों में डेवलप कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट तीनों भी राज्य कर पाएंगे. मेरे पहले भी काफ़ी हमारे जो विधायक हैं, जो MLAs और MLCs हैं, उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया है
कि हम कैसे हेरिटेज साइट्स आइडेंटिफाई करें। जैसे महाराष्ट्र में यूनेस्को के सर्किट्स या साइट्स आज डिटरमाइंड है, वैसे गुजरात और गोवा में भी है। अगर उसका एक सर्किट हम तैयार कर पाएँ तो मुझे लगता है तीनों भी गवर्नमेंट्स अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। एक ऐसा कनेक्टिविटी रूट है जो हमने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है, वो है क्रूज़ टूरिज़्म। जो हम सिंगापुर या कोस्टल अदर जो नेशंस होते हैं स्मॉल, इसमें क्रूज़ टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 9 या 10 दिन के क्रूज़ रहते हैं और वो इन 9-10 दिनों में हमें 3-3 दिनों का हर एक स्टेट या हर एक डेस्टिनेशंस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। तो हमारे ये जो 3 स्टेट्स हैं उनमें अगर हम क्रूज़ टूरिज़्म डेवलप कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि वो टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट ये क्रूज़ टूरिज़्म, ये क्रूज़ सर्किट अगर हम डेवलप कर पाए, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये काफ़ी ज़्यादा एक इनोवेटिव पॉइंट रहेगा आने वाले टूरिस्ट के लिए भी। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ पे, इस पॉइंट पे अगर हमारे स्पीकर्स भी ध्यान देंगे और हमारे तीनों भी गवर्नमेंट्स मिल के इस पे अगर कुछ कर पाए तो आने वाले दिनों में क्रूज़ टूरिज़्म हमारे तीनों भी स्टेट्स में बढ़ पाएगा। हमारे ये जो फ्यूचर ऑफ जोन 7 है, ये कोलैबोरेटिव रीजनल ग्रोथ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारा जो हेरिटेज टूरिज़्म है, इस पे अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में काफ़ी ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थल है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। गुजरात और गोवा में भी है। जैसे गुजरात में पिछले दिनों से द्वारका का जो टूरिज़्म है उस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है और वो एक अट्रैक्शन है रिलीजियस टूरिज़्म के लिए। और अगर ये एक सर्किट तैयार हो पाए तो आई एम श्योर इट विल बी वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स। गोवा हालांकि अलग अलग राज्य और देश के टूरिस्ट गोवा में साल भर आते हैं, लेकिन उसके अलावा हम अगर पिछले 4-5 सालों से देखें तो गोवा भी उनकी जो यहाँ की रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में अभी एफर्ट्स ले रहे हैं। पहले हमारा जो था वो हम कॉस्मोपॉलिटियन या फिर जो पोर्चुगीज़ और इंडियन कल्चर का मिक्स है वो दिखाने की कोशिश गोवा में पहले होती थी। आजकल गोवा गवर्नमेंट भी हमारा जो इंडियन कल्चर है और गोवन कल्चर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर तीनों राज्य मिलकर करेंगे तो आई एम श्योर दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स। हाईवे कनेक्टिविटी और कोस्टल कनेक्टिविटी के अलावा ट्रेन कनेक्टिविटी जो है वो भी, रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो भी हमारे राज्य में अब बढ़ रही है। जैसे मुंबई अहमदाबाद की रेलवे कनेक्टिविटी हो, उसके ऊपर दोनों भी सरकार और हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर, उनका भी ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो आने वाले दिनों में व्यापार, ट्रेड और टूरिज़्म दोनों के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देते समय मुझे लगता है एक कॉमन पॉइंट जिसमें हम एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे वो है क्लाइमेटिक चेंज। तीनों भी राज्य का क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर हम इन पिछले 3-4 सालों में देखें तो काफ़ी सिमिलर रह चुका है। हम में जो क्लाइमेटिक चैलेंजेस है वो भी सिमिलर है, क्योंकि अनटाइमली रेन्स, अनटाइमली साइक्लोन्स, ये जो है नेचुरल कैलामिटीज़ है, ये हम पिछले 3-4 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा फेस कर रहे हैं। गुजरात हो, गोवा हो या महाराष्ट्र हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल महाराष्ट्र में मई महीने के पहले हफ्ते से बारिश शुरू हो गई थी। सो ये बहुत ही अनटाइमली क्लाइमेटिक सिचुएशन है जिसको हम लोग ने पिछले साल डील किया। इस साल के भी क्लाइमेटिक सिचुएशंस हो या पिछले 4-5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो नेचुरल कैलामिटीज से हम ज़्यादा से ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा साथ में मिलकर हमारे एक्सपीरियंसेस जो नेचुरल कैलामिटीज़ डील करते समय है वो अगर एक दूसरे के साथ हम शेयर कर पाएंगे तो आई फील मोर एंड मोर वील बी एबल टू हेल्प ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कैलामिटीज़। तो ये एक मुद्दा है
जहाँ पर मैं तीनों भी स्पीकर्स और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तीनों भी राज्य के, उनका ध्यान में खींचना चाहूँगी कि हम क्लाइमेटिक चेंजेस जो है, चैलेंजेस जो है, वो हम फेस करने ही वाले हैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों का हमने रिकॉर्ड देखा तो एवरी ईयर वी आर फेसिंग सम और दी अदर नेचुरल कैलामिटी। तो वो नेचुरल कैलामिटी के बाद रिकवरी का जो प्रोसेस है वो अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि इट विल बी वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स दैट वी विल बी एबल टू हेल्प ईच अदर ऑन। अगर टूरिज़्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन भी टूरिज़्म से है। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री की पोजीशन पे भी काम करती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मनीषा ताई ने इस बात का जिक्र किया था कि टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है जी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी टूरिज़्म सेक्टर ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू इनकम का सोर्स हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे तीनों भी राज्य के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे महाराष्ट्र में उमेद और माविम है और वैसे ही गुजरात और गोवा में रहेंगे, तो इनका अगर हम एक कोलैबोरेशन कर पाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं को रोज़गार और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स और कुछ जैसे आज हम हमारे विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तीनों भी राज्य के जो सिलेक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी एक दूसरे को मदद कर पाएंगे। एक मेजर एडवांटेज जो गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र को है वो सबसे कम लैंग्वेज बैरियर है। अगर हम सदर्न स्टेट्स को देखें तो उनमें और महाराष्ट्र में लैंग्वेज बैरियर है तो है, गुजरात और सदर्न स्टेट्स में लैंग्वेज बैरियर है तो है, गोवा और सदर्न स्टेट्स में है, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात और गोवा की बात करें तो सबसे कम लैंग्वेज बैरियर्स हैं। मतलब हम एक दूसरे की लैंग्वेज जो है, अगर महाराष्ट्र हो, कोंकणी हो, महाराष्ट्रियन हो या गुजराती हो, वो हम समझ पाते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर कम है और इस चीज़ का फ़ायदा हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में ले सकते हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे अगर हम तीनों भी गवर्नमेंट्स आगे जाके काम करेंगे तो मुझे लगता है हम एक एग्जाम्पल एक राष्ट्र की तरफ हम सेट कर पाएंगे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो हमने PWD डिपार्टमेंट के साथ स्टार्ट किया है इस साल से, वो है एवरी 25 किलोमीटर्स इन द स्टेट हाईवेज प्रोवाइडिंग पब्लिक टॉयलेट्स स्पेशली फॉर वीमेन। तो टूरिज़्म के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है कि हर 25 किलोमीटर में एक पब्लिक टॉयलेट और एक जो फैसिलिटी रहती है वो वीमेन के लिए हो। और ये प्रोजेक्ट डेवलप करते समय हमने एक चीज़ पे ध्यान दिया है कि वो सिर्फ पब्लिक टॉयलेट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स काफ़ी बनते हैं, लेकिन उनको अगर रेवेन्यू जनरेशन का कुछ दिया, हमने कुछ मॉडल नहीं दिया तो उनका मेंटेनेंस उतना हम कर नहीं पाते हैं। तो हमने PWD के साथ मिलके विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन किया है, एक MOU किया है कि वो टॉयलेट्स और उनके साथ कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्टॉल्स बना के देंगे, जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चलाने के लिए देंगे और उनका जो रेवेन्यू जनरेशन रहेगा उसका 10% वो टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स के मेंटेनेंस पे लगाएंगे। तो उससे गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंटेनेंस का खर्चा हो वो बचेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक रेवेन्यू जनरेशन भी रहेगा। अर्बनाइजेशन का एक टॉपिक है, इस बारे में मैं 2 मिनट में बात करूंगी और उसके बाद just 2 minutes, madam. No, thing is that also there are 1 or 2 speakers remaining, so please be brief. So urbanization के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज टूरिस्ट जब प्रोन एरियाज रहते हैं उनमें क्लीनलीनेस का रहता है, क्योंकि हर हफ्ते वहाँ पे टूरिस्ट जो है वो बड़ी तादाद में आते हैं। तो सिटीज़ क्लीन रखेंगे हम जितना, उतने ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल रहेगा। तो वो एक जो चैलेंज हमारे सामने रहता है, तो इसलिए जो क्लीन सिटीज़ रहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिटीज़ ये इंक्लूड हो, पार्टिसिपेट करे, ये महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा ब्लू फ्लैग जो है वो महाराष्ट्र को 5 बीचेस को इस साल 2025 में
ब्लू फ्लैग्स का टैग मिला है। रायगढ़ के 2 है, रत्नागिरी के 2 है और पालघर के 1 है। आगे जाके महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यही प्रयास रहेगा कि ये जो ब्लू फ्लैग्स है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के काफ़ी कम ब्लू फ्लैग्स टैग्स वाले बीचेस रहते हैं। तो महाराष्ट्र की ओर से हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बीचेस हैं वो टूरिस्ट फ्रेंडली और क्लीनलीनेस उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें। सो मुझे इस मौके पे आप सबके साथ चर्चा करने का मौका मिला। मैं तीनों भी गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।